Empathy play a very crucial role in these patients because these are the patients जिनको बहुत deny किया जाता है. Basically, it's a disorder of brain and spinal cord. So we have to work on it. उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो यही होता है that people around them don't understand that they are going through something really significant that's impacting their life. Talk Talk Episode 1. I would like to welcome our panel of discussion for today. Assalamualaikum. My name is Dr. Rabit Basit. I am working as a consultant neurosurgeon at the Care Medical Center. Assalamu alaikum. My name is Dr. Faisal Yamin. I'm working as a neurophysical therapist at the Care Medical Center. Assalamu alaikum. I'm Dr. Fariha Kamal. I'm a clinical psychologist practicing with my team at the Care Medical Center. Fibromyalgia is often described as a hidden illness. How do patients generally describe their symptoms? What impact does it have on diagnosis and empathy? Fibromyalgia basically it's a syndrome. By syndrome means there are various symptoms. उसमें ये होता है कि there is not just one thing. Basically mostly female gender is affected and उसमें the most common thing is pain, which is impaired region. The most common location of pain in these patients is like on the either side of neck, on the other side of upper back, on either side of lateral elbows, and the knees are also affected. There is brain fog. There are other various symptoms. Again, depend either if they are male or female. Apart from this, empathy play a very crucial role in these patients because these are the patients जिनको बहुत deny किया जाता है. पर्टिकुलरली चूँकि फीमेल्स बहुत कॉमन अफेक्टेड होती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गो टू जनरल फिजिशियन. वो बोलेंगी आई एम हैविंग पेन, मुझे नेक पेन हो रहा है, मुझे अपर बैक में पेन हो रहा है, मुझे नीज़ में पेन हो रहा है. एंड एज वी ऑल नो फीमेल ऑल्सो सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एनजाइटी इन अ वेरी कॉमन वे. तो दीज पेशेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जनरल फिजिशियंस. ये पेशेंट जो होते हैं दे आर जस्ट 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन. सो इट्स वेरी रेयर, it's very uncommon and it's very challenging to diagnose the case of fibromyalgia because recently we are not having any labs जो कि इनकी जो है ना diagnosis में हमारी help कर सके. But in these patients what we have to do, we have to exclude other neurological, other neurosurgical conditions. So after excluding all these things हमारे पास जो एक चीज़ बचती है तो वो होती है fibromyalgia, which is जैसे मैंने पहले बोला कि this is not common. तो इसको जो है ना रूल आउट करना पड़ता है. देयर आर सेवरल एक्सरसाइजेज, देयर आर एज वी नो DPT में अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. तो थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस मसल्स हम जो है इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं. और एम्पैथी इट एक्ट्स लाइक अ बफर फॉर दीज पेशेंट्स. लाइक अगर आप उसको पेशेंट को रीअश्योर नहीं करेंगे, काउंसिल नहीं करेंगे, एम्पैथी शो नहीं करेंगे तो माइट बी पेशेंट जो है ना इट्स नॉट दैट मच ओपन टू यू. उसको यही लगेगा कि अगेन जैसे वो पूरा रोटेट करके आ रहा होता है, ही और शी हैज़ फेस सो मेनी डॉक्टर्स, तो वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेगी आपसे. एंड हैंस एम्पैथी play a very crucial role in these patients. Are there any specific strategies you recommend to help people break up their daily activities and prevent boom and bust cycles of activity, where they push themselves too hard and then need to rest for days? First of all, fibromyalgia. Basically, fibromyalgia, it's a disorder of dopamine and serotonin neurotransmitters. तो एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट हमारा जो काम होता है इन पेशेंट्स पर वो डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स को एनहांस करना होता है थ्रू एक्सरसाइजेस. देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस जो सेरोटोनिन लेवल को एनहांस करती हैं, जैसे स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेंथनिंग है. इसी तरह डोपामीन के लिए हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें साइकिलिंग आ जाती है, रनिंग आ जाती है या फिर स्विमिंग आ जाती है. तो बेसिकली फिज़िकल थेरेपी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो मैनुअल थेरेपी होती है उसमें डीप फ्रिक्शन मसाज आते हैं, मायोफेशियल रिलीजेस आती हैं और न्यूरोडायनेमिक्स आती हैं. बेसिकली इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो वी हैव टू वर्क ऑन इट थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू मैनुअल थेरेपी, थ्रू our different techniques, and as well as we have equipment like transcutaneous electrical nerve stimulator which reduces the pain through pain gate theory and enhances the secretion of endorphin which relaxes the body. Do you see a lot of patients with fibromyalgia struggling with self-worth or self-esteem due to perceived invisibility of their condition?
How can they overcome their feeling of being misunderstood? फाइब्रोमाइल्जिया क्योंकि पेन डिसऑर्डर है और पेन नज़र नहीं आता, तो बहुत दफ़ा जब पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो यकीनन उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो यही होता है दैट पीपल अराउंड देम डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग रियली सिग्निफिकेंट दैट्स इम्पैक्टिंग देयर लाइफ। क्योंकि ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट भी बहुत कम परसेंटेज में करता है, तो यकीनन उनको बहुत दफ़ा मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा होता है इस तरह से कि मे बी उनको असल में तकलीफ़ नहीं है, वो सिर्फ अपने जहन में उस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, या बहुत दफ़ा ये कंसिडर किया जा रहा होता है कि वो सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं और एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। सो उसकी वजह से बिल्कुल उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत इम्पैक्ट होती है, ख़ास तौर पे जब हर तरफ से उनको इनवैलिडेशन मिल रही होती है। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कम्युनिकेटिंग देयर कंसर्न्स टू अदर्स। किसी भी और चीज़ की तरह इस बीमारी के अंदर भी जो आपके आसपास के लोग होते हैं उनसे अगर वो ओपनली कम्युनिकेट करें, उनको ये समझाएं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे फीलिंग, अपने ट्रिगर्स बताएं, किन चीज़ों से फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, पेन किन चीज़ों से एग्जैसिबेट कर रहा है। कम्युनिकेट जब तक नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को या किसी भी आसपास के इंसान को समझाया नहीं जा सकता। सो वंस दे एक्सप्लेन इट एंड वंस समबडी प्रोवाइड्स देम विद एम्पैथी, तब उनकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होना शुरू होती है। Why fibromyalgia is more common in females as compared to males? Any theories? Yes, there are different schools of thought, but the thing is that women's are, as we all know, women's, they are solely depend on hormones. So hormones basically they affect every woman in every age. Fibromyalgia particularly जो है most commonly देखा जाता है after 40s, because after 40s postmenopausal age होती है, और इसके बाद ये होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन विच प्ले अगेन अ क्रूशल रोल पर्टिकुलरली फीमेल्स में, आफ्टर 40s वो हार्मोन डिक्रीज़ होता है। तो विथ लो ईस्ट्रोजन अगेन वेरियस सिम्टम्स अराइज, जिसमें जो है ना फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम्स सिमिलर अराइज होते हैं। मोस्टली दीज patients have associated other abnormalities as well, like there are certain other triggers of fibromyalgia, like these women are known case of depression, anxiety and several other syndromes like inflammatory bowel syndrome, जिसमें उनकी जो है ना defecation की जो भी habits होती हैं वो change हो जाती हैं। So again it's all hormone based, and fibromyalgia के patient में जो mood swings देखे जाते हैं they are again यही सोचा जाता है कि it's again because of these hormones. So this is the most common theory जिस पे जो है ना काफ़ी researches भी चल रही हैं। Estrogen play very crucial role, with increasing age estrogen hormone कम होगा तो अगेन जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं वो और वर्स होने की तरफ जाते हैं। Are there any new research findings or emerging techniques in physiotherapy that you're excited about in the treatment of fibromyalgia? Yes, as we have discussed कि it's a disorder of brain and spinal cord जो neurotransmitters की alteration की वजह से होता है। So physical exercises में, therapeutic exercises में, therapeutically we have a neurodynamic technique which also has a assessment method as well as a treatment method. Upper limb में median nerve, radial nerve, ulnar nerve, musculocutaneous nerve, इनकी अपर लिम टेंशन टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट उनमें यकीनन पॉजिटिव आते हैं। और इसी तरह न्यूरोडायनेमिक्स की मोबिलाइजेशन होती है जिसमें ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग होती है विच कैन बी परफॉर्म्ड, विच शुड बी परफॉर्म बाय द क्वालिफाइड फिजिकल थेरेपिस्ट, एज वेल एज लोअर लिम में फेमोरल नर्व, शियाटिक नर्व, सूरल, टिबियल नर्व, इनकी भी अपनी असेसमेंट होती है और उसकी मोबिलाइजेशन टेक्निक होती है। ये लेटेस्ट रिसर्चेस को सपोर्ट कर रही है कि न्यूरोडायनेमिक्स का इसमें क्या रोल है और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। सेम एज़ मैनुअल थेरेपी में डीप फ्रिक्शन मसाजेस हैं और मायोफेशियल रिलीज़ हैं। बेसिकली क्योंकि ये टेंडर पॉइंट्स होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स नहीं होते, तो इनका रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है जो ऑक्सीडाइज करता है उस एरिया को और वहाँ पर सर्कुलेशन को एनहेंस करता है। इसी तरह फिज़िकल थेरेपिस्ट को के पास अगर आप जाते हैं तो वो टेंस थेरेपी या इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूज़ करते हैं जिसमें पेन गेट थ्योरी के थ्रू एक मोड ऑफ करंट अप्लाई होता है जो उनके एंडोर्फिन को एनहांस करता है। उसके साथ साथ होम एक्सरसाइज प्लान्स में आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस उनको गाइड करते हैं जिसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं एज अकॉर्डिंग टू एज एंड कोमॉर्बिड्स को रखते हुए उनको गाइड किया जाता है और वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। बेसिकली
अगेन कम्स कि सेरोटोनिन और डोपामीन पे जब हम काम करते हैं तो उनके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, एक्वेटिक एक्सरसाइजेज हैं यानी स्विमिंग है, या फिर इवन वॉक है. वॉक इज़ अ कंप्लीट एक्सरसाइज. इफ़ 20 मिनट्स पर डे अगर वॉक करते हैं, 150 मिनट्स अ वीक इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीबडी. Not on the treadmill, it should be outside the premises of atmosphere, क्योंकि what we need is to take more oxygen to oxidize more blood cells and to relieve the patient. Many fibromyalgia patients report experiencing cognitive difficulties, commonly referred to as fibrofog. How do you help patients manage their frustration, confusion, and emotional distress associated with cognitive impairments? जी बिल्कुल, फाइब्रोफॉग बहुत कॉमन सिम्टम है फाइब्रोमाइल्जिया का. मोस्ट कॉमनली तो लोग समझते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया में सिर्फ पेन होता है, लेकिन कॉग्निटिवली थॉट डिस्टर्बेंसेस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती हैं. इसमें थोड़ा सा पहले इमोशनल रेगुलेशन और उस पर बात करने से पहले ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं. सो जब किसी इंडिविजुअल को कॉन्स्टेंटली पेन होता है, उस पेन से और उसकी वजह से जो एक इमोबिलिटी उसके अंदर आ रही होती है, उसको वो इंडिविजुअल डील करने के लिए बहुत ज़्यादा अपना मेंटल एनर्जी लगा रहा होता है. जब मेंटल एनर्जी लगाता है तो जहन क्योंकि बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा, ज़्यादा जो कॉग्निटिव लोड आ रहा है वो उसकी इसी स्ट्रगल में आ रहा है कि वो पेन को कैसे मैनेज करे और किस तरह से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को डील करे. इसकी वजह से एक फॉग या एक कंसंट्रेशन के लॉस की फीलिंग आती है, जिसको फाइब्रोफॉग कहा जाता है. ये बहुत ज़्यादा लिंक कर रही होती है स्लीप डिस्टर्बेंस से भी, क्योंकि जब आप जैसे जैसे रात की तरफ बढ़ते हैं आप, एक तो थकन का एलिमेंट, फटीग का एलिमेंट ज़्यादा हो रहा होता है और उसके साथ फिर स्लीप डिस्टर्ब होती है. सो हम इन तमाम चीज़ों को डील करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ क्लाइंट को समझाते हैं. पहले तो साइको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली हो जो रहा है वो क्या हो रहा है, कितना फ़ीसद उनका उसमें कसूर है, क्योंकि बहुत दफ़ा विक्टिम ब्लेमिंग हो रही होती है इस केस में कि यू आर जस्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ अटेंशन सीकिंग या इस तरह का. तो थोड़ा साइको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है. उसके बाद उनको कंसंट्रेशन की एक्टिविटी सिखाने की ज़रूरत होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे हैव टू कॉन्सनट्रेट ऑन समथिंग तो डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर रहें. डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट के साथ साथ उनको स्लीप के टाइम पे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, ताकि वो जब नींद की तरफ बढ़ने लगें तो वो सही से सो सकें. जितना सुकून से नींद आएगी उतना ज़्यादा मसल्स उनके रिकवर कर सकेंगे, बिकॉज स्लीप का अपना एक रेस्टोरेटिव फंक्शन होता है. अलॉन्ग विद दैट जो उनके नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर इलनेस, उन नेगेटिव इमोशंस को चैनल करने का तरीका सिखाया जाता है, जिसमें अगेन फ़िज़िकल थेरेपी से इसका बहुत एक क्लोज़ लिंक है. क्योंकि फ़िज़िकल थेरेपी में जब आप वॉक कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप कर रहे होते हैं, तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं. तो वो एंडोर्फिन्स ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस करते हैं. अलॉन्ग विद दैट हम उनको ये ज़रूर कहते हैं कि कुछ ऐसी सेल्फ केयर स्ट्रैटेजी ज़रूर वो करें. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा काम दिन में जो उनको अच्छा लगता है करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पसंदीदा शख्स के साथ थोड़ा बहुत गुजारना है, जिनके घर में बच्चे हैं बच्चों के साथ थोड़ा बहुत गुजारना है. ऐसे सोशल कनेक्शंस बिल्ड करना या ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिससे उनके अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट हों, तो वो फाइब्रोमाइल्जिया की वजह से जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे होते हैं और वो ऐड ऑन कर रहे होते हैं उस फॉगीनेस में या कंसंट्रेशन के लॉस में, उसमें ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं.